So, a warm welcome to everyone, all our esteemed guests, all our dignitaries, all our ladies and gentlemen, and each and every team members, those who are present here. Well, it's truly an honor to have you all with us at the beautiful, extremely amazing and incredible event, ladies and gentlemen. So today, this is not just an event, well, but a celebration of vision, collaboration and progress. A platform where idea meets innovation, efforts turn into achievement, and together we move one step closer to our shared goals. So ladies and gentlemen, this is the host Aradhna, and from my core of the heart, I welcome you all to this fantastic event. So before we start, I would like to request all of you, let's put your hands together for the fantastic event, ladies and gentlemen. Make some noise and a big clap for this incredible event. Thank you so much. And in Orissa, before we start any kind of event, any kind of Shubhakarya, as you can say, we take the holy name, Prabhu Shri Jagannath Ji. So I would like to request each and every one, kindly take your both of the hands in the air and say with me, Jai Jagannath! Bit more louder, requesting all of you once again, and with a positive smile, say with me, Jai Jagannath! Thank you so much, each and everyone, thank you very much. And, well, we all are really excited, and as you can see, as I can see, everybody is excited, and everybody is carrying a beautiful and positive smile in the morning. Well, welcome to Vision India, Plan, Develop and Ascend, a platform designed to catalyze India's transformation into Neo India. To open today's Holistic Health Summit, I am pleased to introduce Dr. Rajiv Rai, Honorable Member of Parliament and our esteemed Chief Coordinator. Kindly please be here on the stage, and ladies and gentlemen, please give him a big round of applause. Very good morning to you, sir. Thank you, Aradhna. Good morning and Jai Jagannath once again. Ladies and gentlemen, I warmly welcome all the dignitaries, guests, experts to the Vision India Holistic Health Summit here in historic and prominent city of Bhubaneswar, enriched by the culture and blessed by the divine grace of Bhagwan Jagannath. We are honored to have our esteemed chief guest, former Chief Minister, 5-time MP, National President of Samajwadi Party, and to whom I always call the most visionary leader of India, Akhilesh Yadav ji, in super session. Meanwhile, I extend my heartfelt gratitude to all experts, speakers, and participants who have joined today to contribute their knowledge, experience, and ideas for the future of holistic health in our nation. With the blessing of Bhagwan Jagannath and the collective support of all present, let us move forward with the purpose, dedication, and unity. I invite Professor Abhishek Mishra, former Minister of Uttar Pradesh government and renowned professor in several universities across the world. I please Professor Abhishek Mishra take forward this. Many thanks, Dr. Rajiv Rai Sahab. Once again, good morning everybody and Jai Jagannath. It's a great pleasure to be here today on this auspicious land of Lord Jagannath, Odisha, and where the confluence of multiple religions, cultures creates a nation, creates a state, creates a people, creates a culture that spreads across the country and across the world and has created a space for itself. I salute to that. For the Vision India, today, let me say that India stands at a pivotal inflection point in health and wellness. Alongside rapid advances in clinical care, digital health, and AI-enabled diagnostics,
We're also witnessing a growing recognition that health cannot be reduced to treatment alone. The growing burden of non-communicable diseases, mental health challenges, lifestyle disorders, and chronic stress makes it clear that a purely reactive healthcare model is no longer viable. One insight stands out very clearly, and that is that sustainable health comes from when medical science is integrated with holistic health, holistic wellness, and the concepts of prevention, nutrition, mental well-being, community health, and behavioral change. India has a unique advantage here, and now we are able to intersect that with modern science, technology, and data. However, this convergence also raises critical questions. How do we move from episodic care to continuous well-being? How do we embed prevention into healthcare financing, insurance, and delivery? And how do we ensure that innovation enhances human-centered care rather than widening the existing inequalities that the country faces? Today, Vision India panel brings together the clinical depth and the lived experiences that are needed to engage with these questions seriously. Today, the role of this dialogue is that it looks beyond silos. It brings together policy, practice, and innovation to imagine a health and wellness ecosystem that is inclusive, that is scalable, and future-ready. Ladies and gentlemen, it is my great privilege to welcome all of you here today, to welcome our esteemed panelists, distinguished guests, ladies, gentlemen, friends from the media, the hardworking team members who put this event together. Thank you so much. And with that, let's start the event. I declare this open. And firstly, I would request our esteemed panelist, distinguished member, you've just heard from him, Dr. Rajiv Rayaji, Honorable Member of Lok Sabha, and a prominent educationist. He has built an passion for education across multiple fields, including nursing, community health, management, physiotherapy, biotechnology, multiple fields, and he's carved his place in the hearts of people. He's our member of parliament from the Lok Sabha and won huge margin in 2024 elections. I welcome Dr. Rajiv Rai Sahab. Please come and join us on the stage. Most welcome, Doctor. I now request our esteemed guest, Dr. Alka Adhia ji, Senior Consultant Gynecological Surgery, Oncology, BLK Max Super Speciality Hospital, Delhi. She specializes in minimally invasive gynecological cancer surgeries, robotic surgeries, ovarian cancer cytoreduction and HIPEC, preventive gynecological and breast oncology, endometrial cancer, and other complex procedures. Most welcome, Doctor. It's my pleasure to now invite Dr. Pankaj Bharti, MBBS, PGDY, a dedicated physician with 23 plus years of experience in managing chronic metabolic and lifestyle disorders, experience in clinical practice, patient counseling, and long-term disease reversal. He has consulted and treated widely, including honorable presidents of India and many national leaders. He speaks regularly at IIMs, Simon Fraser University, Canada, and has organized camps in London, Singapore, and across India. Most welcome, Doctor. It is my great privilege to now welcome Dr. Ashutosh Verma ji on the stage, MBBS, DCH, MD Pediatrics, PG Diploma in Pediatric Nutrition from Boston, USA. Widely recognized and awarded, he's been awarded as a UP Health Icon in Limca Book of Records, in the World Book of Records, and by Medgate Research. He runs an NGO, Health Weavers, to provide free healthcare since the last 15 years. Most welcome to the panel. Can I also request that, we'd like to extend a warm welcome to a guest through flowers. It is my great privilege to first welcome Dr. Rajiv Rai Sahab, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, and a prominent educationist. And then I'll request Dr. Sahab to please extend a warm invitation to other panelists. I now request Dr. Rajiv Rai to please extend a bouquet to Dr. Alka ji, please. Dr. Alka Adhia. Request Dr. Rajiv Rai ji to please welcome Dr. Pankaj Bharti. Thank you.
And now request Dr. Rajiv Rai to please welcome Dr. Ashutosh Verma ji. Thank you very much. Thank you. Well, once again, good morning, everybody, and thank you to the distinguished panel for being here. Today, you know that India is facing a huge health crisis, and we would like to start the session by pointing out and reminding that, we're talking about holistic health today. It goes beyond a concept of curative health or treatment alone. It is about how we can build a healthy mind, body, and soul, and how we can integrate that concept together, right? First of all, I'd like to start with Dr. Bharti there. Doctor, you've been practicing holistic medicine for a very, very long time. You're a trained MBBS doctor. So the beauty that you bring is you bring the sciences background, MBBS training, and then you diversify it into holistic medicine, right? What I would like to understand with you is कि जब हम modern हेल्थ की बात करते हैं, होलिस्टिक मेडिसिन की बात करते हैं, सब लोग वही सेम चीज चाहते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बने, हम हेल्थ अच्छी रहे, माइंड बॉडी और सोल का सिंक्रोनाइजेशन ठीक रहे, तो हम मेथोडोलॉजी पे क्यों आर्ग्यू करते हैं? एक तरफ जो साइंस बेस्ड हमारी एजुकेशन है, एमबीबीएस, बाकी जो नॉर्मल्स वो है, और जो होलिस्टिक हेल्थ की हम बात करते हैं, व्हाई डू वी आर्ग्यू विद द मेथड्स? और ऐसा क्या कोई केस है जो आपने देखा, आपको ट्रीट करने का मौका मिला, जिसमें एक आपको ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, दोनों को मिला करके ट्रीट करें तो बेहतर होगा रादर देन किसी एक चीज को लेकर के चलने से? तो इस पे मैं होलिस्टिक हेल्थ पे आपका जवाब चाहूंगा. देखिए, हमारी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है. जब हमारा एक्यूट केसेस के मैनेजमेंट की बात होती है, जब हमारी इमरजेंसीज की बात होती है, ट्रॉमा की बात होती है, हमारा कन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब सेम केयर मॉडल हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए अप्लाई किया जाता है. जैसे आपने बताया कि हेल्थ हमारा इट्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इट्स मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एज वेल. सो कहीं ना कहीं हमारी जो मॉडर्न मेडिकल अप्रोच है वो दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड फिजिकल हेल्थ. तो जब हम एक हॉलिस्टिक हेल्थ, जैसे हमारे समिट का जो टॉपिक भी है, हॉलिस्टिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स में कवर होने चाहिए, और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं है. हमें अपना जो स्कोप है वो पहले समझना चाहिए कि जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम था उसका इवोल्यूशन हुआ था एक्यूट केसेस मैनेजमेंट के लिए, जो हमारी एक्यूट इलनेसेस हैं, ट्रॉमा है, सर्जरीज हैं, इनके लिए. लेकिन जहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों की बात होती है और अगर हम सेम केयर मॉडल वहां पे अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारी मिसिंग होती हैं. तो हमारा किसी भी सिस्टम से विरोध नहीं है. सभी डॉक्टर्स का जो एम है हमें हेल्दी बनाना, लेकिन कन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब हम एक ही मॉडल को हर जगह इम्प्लाई करना चाहते हैं. तो जहां पे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ऑफ कोर्स वहां पे हमारी फूड, न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी साथ में बात होनी चाहिए. तो ये चीजें एक दूसरे को अपोज नहीं करती हैं बल्कि कॉम्प्लीमेंट करती हैं. तो हमें दोनों चीजों को साथ में जब रख के बात करनी पड़ेगी तो ही हम एक जो हमारा होलिस्टिक हेल्थ मॉडल है वो सामने उभर कर आएगा. Thank you so much. Thank you. Dr. Let me come to the elephant in the room, as they say, colloquially speaking. Your expertise, specialization is in gynecological oncology, right? And cancer cases have been rising in this country phenomenally. Last year, the number of cases exceeded 1.5 million cases in this country. And unfortunately, Uttar Pradesh had the highest incidence of those cases. And many of those cases, especially with regards to gynecological issues, women's health issues, many times, detection becomes very late. Many times, the forefront, the proactivity that should be required for treating them, that is not exhibited. So what is your sense about, what are the most prominent cancers that are affecting especially women in India, and how holistic health
So I would like you to keep that emphasis in mind, right? How we can approach that subject through that perspective and solve that quagmire that India is facing today. So truly said, there has been an increase in the cancer cases in our country, especially when it comes to women cancer. I think people will not believe that every 8 minutes one woman is diagnosed with breast cancer and every 12 minutes one woman is diagnosed with cervical cancer. And this is despite the fact that these are the only two cancers which have very robust screening services. हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, but despite that, when the cancer is increasing, there has to be multiple reasons. And like Dr. Pankaj said, I truly agree that when you treat a woman with cancer, you just don't treat the cancer. Right. You treat the woman as a whole. You go beyond curing the tumor. As You a person. Exactly. You take into consideration the various aspects, the various dimensions, like the emotional, psychosexual, and financial burden as well. True. And there are two reasons why cancers increase. One, it is called as the false increase. Nowadays we have better health facilities, better diagnostic tools, so we have a better detection rate. Right. But apart from that, definitely the changes in lifestyle, increase in obesity, diabetes, hypertension, PCOS, and one very important factor is the chronic stress related to career changes. Women are delaying pregnancies, there is increased hormonal exposure, and everything is added to an increase in the cancer burden. And Uttar Pradesh, being one of the largest states of the country, holds a major share of gynecological cancers. Cervical cancer cases are maximally found in UP. In UP. Yes. And you said it is preventable. It is there's a vaccine against that. So why are we failing on that front? What is your assessment? You said both are common cancers and both are preventable, both are treatable. Then why are we failing in that? So one of the most important reason is the myth. People still believe that cancer is incurable. Cancer cannot be prevented. Cervical cancer has very private symptoms. Women don't go out, they hesitate, they don't prioritize their health. They are very hesitant in telling their sons or telling their daughters, okay, I'm suffering from this, please take me to the hospital. Right. They feel they are a burden to their family. That is the most important reason. And secondly, people still believe that vaccine is not safe. But I would like to tell this today, that if we vaccinate 90% of the girl child in our country between the age of 9 to 14 years, cervical cancer is almost 100% preventable. Wow. And nowadays, WHO has said that we can vaccinate even up till 45 years. Right. 3 doses and you get protection against one of the most deadly and one of the most common cancers in the world. You're talking about the PPV, the virus, the papilloma virus, HPV, yeah? yes. HPV 90% virus, right. of the cancers, not just cervical cancer, but anal cancer, throat cancer. So also if we vaccinate the girl child, the males, they become automatically protected like our polio vaccine, which is called as herd immunity. So that much importance it is to understand the vaccination. Okay, thank you. डॉक्टर राय, I'd like to come to you. आपका एक बड़ा ही यूनिक पर्सपेक्टिव है, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपको पॉलिसी का पूरा एक्सपोजर है, पार्लियामेंट में क्या डिबेट्स चल रहे हैं, हेल्थ पे आपने पार्लियामेंट में बोला भी था, इन मुद्दों पे आप अपनी बात रखते रहते हैं. आपका जो एक्सपोजर एजुकेशन का है और पॉलिसी का है, उसको मिला करके मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, एक हम लोग बहुत बार इस बारे में बात करते हैं, पॉलिसी की, नंबर्स की, बियॉन्ड डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, एक सिग्निफिकेंट चैलेंजेस क्या है देश में आज की तारीख में होलिस्टिक हेल्थ को इंप्लीमेंट करने के लिए? Thank you, Abhishek. Allow me to pick up. There are several challenges, several issues which we are facing, but allow me to pick up from where the doctor Please. कैंसर का आपने एग्जाम्पल दिया. जी. मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि सांप के काटने से लोग नहीं मरते हैं जितना सांप के काटने के दहशत से मर जाते हैं. जिस परिवार में कैंसर हो जाता है उस परिवार के लोगों को डॉक्टर साहब बताया कि वी शुड ट्रीट पेशेंट एज ए होल, नॉट ओनली नो द क्यूरेटिव दिस थिंग, बट व्हाट अबाउट द फैमिली मेंबर्स? एंड यू नो दैट वी आर इन अ कंट्री जहां हम बोलते हैं आई एम सॉरी, दिस इज नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट आज भी हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि ये छाती पीटते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं. दैट रिफ्लेक्ट्स आवर कंडीशन, सेंसिटिविटीज, राइट. और बोला जाता है जैसे सारे लोग जब डिफिनेशन देंगे हेल्थ का
तो हेल्थ इज नॉट merely an absence of disease, it is a complete well-being of physical, mental and social well-being. फिजिकल ट्रीट कर देंगे डॉक्टर, वहां भी मैं आऊंगा, फिजिकल ट्रीट कर देंगे डॉक्टर. व्हाट अबाउट द मेंटल एंड सोशल वेलबींग? एनीबॉडी इज कंसर्न अबाउट दैट? और so, सबसे बड़ा चैलेंज एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्ट होने के बाद जो फेस कर रहा हूं, जब हम कहते हैं कि 80 करोड़ लोग को 5 किलो अनाज देते हैं और हमारी आबादी भी उतनी रूरल रहती है, तो अभी उनका इलाज क्या है? पहले तो जो पेशेंट हो गए उनका इलाज करो, जो चैलेंज फेस कर रहे हैं. डॉक्टर साहब के पास चले गए, सी विल नो दैट हाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. अभी आयुष्मान कार्ड है, मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था, 5 लाख में किस कैंसर का इलाज आप किस गरीब का कर देंगे? नॉट पॉसिबल ना. तो वी हैव टू अप्रोच. देन देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है 65% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और 70%, आई थिंक दे वुड एग्री विद मी, इज शहरों में है, अर्बन एरिया में है, मेजॉरिटी रूरल में है. देन प्राइमरी स्टेज होते हैं, जो CHOs होते हैं, नर्सेज होते हैं, आंगनवाड़ी. स्क्रीनिंग इज नॉट डन एट मोस्ट ऑफ द, आई थिंक आई एम श्योर द मोस्ट ऑफ द पेशेंट व्हेन यू गेट, they are at the stage 2nd, 3rd or 4th advanced stage. So if they are screened at the very beginning, the rate of cure also will be this thing. तो जो हमारे ना 62%, you will be surprised, affordability is a main cause. 70% के आसपास लोगों को अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस नहीं है. तो चैलेंजेस इतने, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल अर्बन डिवाइड, प्रॉपर नेटवर्क, स्क्रीनिंग, अफोर्डेबिलिटी, बजट एलोकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग. अब एक एग्जांपल और दे दूं, सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है. किस PSC में आप देखते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर होते हैं? नहीं होते हैं ना. हमारे यहाँ जो एवरेज है, साइकियाट्रिस्ट, हर आदमी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती. एक तो आदमी से डर जाता है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहे हो. 1 लाख पर एक साइकियाट्रिस्ट है. आप जाइए डेवलप्ड कंट्री में. सो अनलेस वी चेंज एट द पॉलिसी लेवल एंड थिंक, हम भाषणों में तो बोलते हैं कि आखिरी व्यक्ति के आखिरी पायदान पर, बट द प्रॉब्लम, लेट अस बी वेरी रियलिस्टिक, अनलेस वी एड्रेस द कोर इश्यूज, बेसिक, हम रिएक्टिव हैं, प्रिवेंटिव नहीं है. हम रिएक्ट करते हैं, प्रोएक्टिव नहीं है. प्रोएक्टिव नहीं है. बीमारी हो गया तो इलाज करेंगे, बीमारी ना हो उसका नहीं खोजते हैं. So this is the biggest challenge I feel we face it. Okay, thank you. Dr. Ashutosh ji, I would like to come to you on this. So we've talked about, people needing holistic treatment. We've talked about policy inputs here. Doctors have talked about especially cancer rise and women and related issues. उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपके पास आना चाहूंगा बिकॉज आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज पीडियाट्रिक्स. वो बच्चे, हम सब लोग अपनी बात कह सकते हैं, बता सकते हैं, संकोच हो, झिझक हो, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन बच्चे जो बोल भी नहीं पाते, कई बार इन्फेंट्स की बात से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम, कि जो इन्फेंट्स हैं वो अपनी बात कह नहीं सकते, सिर्फ वो रो सकते हैं. तो उसके लेवल पे जो ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, जो होलिस्टिक हेल्थ का रोल हो जाता है, वो शायद और बड़ा हो जाता है. और अगर हम वहां पे ट्रीटमेंट ठीक से दे सकें, बच्चों के होलिस्टिक हेल्थ का ख्याल रख सकें, तो आगे, अभी जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर राजीव राय ने भी कहा कि हमें उनको प्रिवेंशन का रास्ता बेटर होगा ट्रीटमेंट रादर देन ट्रीटमेंट का. तो आपके हिसाब से होलिस्टिक हेल्थ, स्पेशली इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, कैसे, उसका क्या मायने और उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं? थैंक यू अभिषेक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रभात, एंड उत्तर प्रदेश की धरती से इतने शानदार लोगों को नमस्कार. सो when we talk about the pediatrics and infancy, definitely it's a science of sign, not the symptoms. So we have to be very careful and we have to understand from the core of the heart. And the pediatric holistic health initiative basically comprise a proactive approach, which is a comprehensive approach. It's not only dealing with the simple diseases or treating like a reactive model to fix what has been broken. The future has been changed. We have to change as a comprehensive child which deals with the physical health, the mental health, the emotional health, the social health, and sometime in the spiritual dimension also. I think, Abhishek, the traditional medicines which has lot of treatment for the acute illness, but nowadays in the urbanization, the global changing, our pediatric patients lot of emotional and mental health. They need lot of tender care from as a parent, as a senior, as a society. Right. And
Society taking medicine for granted. If you are sick, go to doctor, take a medicine, and it's goes on. It's not like this. Right. A pediatric is not half of the adult. They are something different. So I think a holistic health has been changed a lot across the globe and also needs to be in India. Because we know that when you talk of preventive medicines, it's the pediatric populations, it's the youth, it's the adolescent population which needs to be. Okay. So we need to be more and more preventive. जितना हम बचाव की बात करेंगे, उतना हम अपने बच्चों के लिए, अपने नौनिहालों के लिए एक ऐसी जनरेशन जो प्रोडक्टिव जनरेशन होंगी. दवाइयों से, इलाजों से हम बहुत अच्छा नहीं दे पा रहे हैं. हम उनकी आज की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हम लोग पैदा कर रहे हैं. तो आई थिंक होलिस्टिक केयर इज द building blocks for the pediatric care. And I agree as Dr. Alka was talking about the cancers. In India and the globally, 1970s में hepatitis B का वैक्सीन आ गया था. And hepatitis B is going to be prevent from the hepatocellular carcinoma, liver carcinomas. From 1970s, it took about 5 decades for a new vaccine of human papilloma virus. And this is heartening. Yeah. Still, India is bottom 5 for using these vaccines. HPV. And I think as the policy makers, Dr. Rai is there, we should promote a compulsory vaccination of human papilloma virus. It not only prevents the cervical cancers, it prevents the penile cancers of the male. It prevents the breast cancer in the male. In the countries like USA, America में बच्चों के लिए, खासकर पुरुषों के लिए 5 से 15 साल में HPV के वैक्सीन मैंडेटरी है जी. और हम अभी वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. एंड दिस इज द आयरनी ऑफ अवर कंट्री. Right. Okay. Thank you. Let me come to Dr. Pankaj Bharti back again here. डॉक्टर साहब, अगर आपको लगता है कि होलिस्टिक हेल्थ आगे बढ़ने का तरीका है, हम साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन जितनी है उसका इस्तेमाल करके, लेकिन बाकी इंटीग्रेटिव ह्यूमन को एज अ होल बीइंग ट्रीट करके हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, तो आपको ऐसा क्यों होता है कि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट कर रहे होते हैं? जैसे अगर मुझको रात में सोने में दर्द हो गया तो अब मैंने पेन किलर खा लिया और अगले दिन सुबह 2 घंटे बाद मैं भूल गया उसके बाद, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपना पोस्चर ठीक कर लेना चाहिए या सोते समय तकिया लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, पतला लगाना चाहिए, मोटा लगाना, व्हाटएवर. इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वॉकिंग में, खड़े होने में, बैठने में, चेयर्स पे. तो हम ट्रीटमेंट्स को क्यों ट्रीट कर रहे हैं और पूरे को क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं? दैट इज वन क्वेश्चन. और दूसरा मेरा सवाल उठता है, जैसे आजकल फूड पे बहुत सारी कमेंट्री आ रही है, हमने देखा इधर न्यूज़पेपर्स भरे पड़े हैं, मीडिया में बहुत चर्चा रही है. अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे उसको एक बड़ा मुद्दे के तरीके से ट्रीट किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने. उन्होंने कहा था कि भाई फूड की क्वालिटी, फूड की जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जा रहे हैं वो भी कैंसर्स को लीड कर रहे हैं, बाकी बीमारियों को लीड कर रहे हैं. तो अगर मान लीजिए आज हमारे शरीर शिकायत कर सकता, बोल सकता ऐसी भाषा में जो भाई आप डॉक्टर्स तो समझ सकते हैं, हम लोग आम आदमी भी समझता, तो किस बात की शिकायत करता? क्या वो कहता खाना खराब हो गया है, या लाइफस्टाइल्स खराब हो गई हैं, या स्ट्रेस खराब हो गया है, या इमोशंस की दिक्कत? या एक बहुत बड़ी बात आई अभी, आपने भी कही, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, अफोर्डेबिलिटी. जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है एज ए इंडिविजुअल, एज अ फैमिली यूनिट, एज अ ब्रॉडर सोसाइटल यूनिट, उसका कितना असर पड़ता है? तो मैंने आपको क्वेश्चन 2 सवाल पूछे लार्जली इसमें. पहला, ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ हम सिम्टम्स का करते हैं? और दूसरा, अगर शरीर बोल सकता तो क्या बोलता? पहले बात तो मैं ये कहूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए. दो लार्जली, आप 2 के आंसर दीजिए. तो देखिए, जो सबसे पहले बोला कि हम सिम्टम्स क्यों ट्रीट करते हैं, एक तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम आसान रास्ते चुनते हैं. उनको मालूम है कि हम गोली खा लेंगे और हमारा आधे घंटे में फीवर कम हो जाएगा या हमारा 5 दिन में इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा. दूसरा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे हिंदुस्तान में मिसिंग है, वो जो आपने कही कि हम सिम्टम्स क्यों ट्रीट करते हैं, तो बेसिक्स हमारे स्टार्ट होते हैं हमारी एजुकेशन से. जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा बुक्स का बर्डन होता है, स्टडीज का बर्डन होता है, लेकिन हमें बेसिक चीजें, न्यूट्रिशन के बारे में, हमारा पोस्चर कैसा हो, हमारा सोशली हम कैसे बिहेव करें, ये चीजें मिसिंग होती हैं. दूसरी चीज है जो हमारा मेडिकल करिकुलम है,
वो कहीं ना कहीं हमारा डिजीज ट्रीटमेंट की तरफ फोकस्ड है। हम जब फर्स्ट ईयर मेडिकल में जाते हैं तो हमें डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट्स इन टोटलिटी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ। बट 3 एस्पेक्ट्स हमारे मेडिकल करिकुलम में कहीं ना कहीं मिसिंग हैं। डॉक्टर दहिया उससे एग्री करती होंगी। और जो मैंने सबसे पहले बताया कि जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ था वो एक एक्यूट केयर मॉडल की तरफ हुआ था, सर्जरीज के लिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, पेंडेमिक्स के लिए। बट वही जो हमारा एक्यूट केयर मॉडल है उसको हमने एलोपैथिक सिस्टम में अप्लाई कर दिया और हमने शॉर्टकट्स ढूंढ लिए। जबकि हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए जो हमारे फंडामेंटल हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो है हमारे न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, सन एक्सपोजर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कहीं ना कहीं हमारी चीजें मिसिंग है। और जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग हो गई थी कि मैं एक स्टोरी शेयर करूं। वो यहाँ पे मैं इसलिए शेयर करना चाहूंगा कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में एक पेशेंट हमारे पास आई and she was suffering from various ailments, like she was not able to move even 10 steps. She was suffering from severe osteoarthritis, slip disc. She was grossly obese, having hypertension, diabetes, and so many other ailments. But when I offered treatment to her, she was showing reluctance. And after 8 years, when she tried everything, when her condition even deteriorated, then one fine day I got an opportunity to treat her, and within 3 months program, she was able to walk at least 3 kilometers. She was relieved from all kinds of pain. She reduced at least 12 kg weight. She reduced diabetes medicine, hypertension medicine, and she was able to sleep without even a single pill. And this case is very close to my heart, and I would like to tell you in front of you all, but she was my mother. और इसके बाद अभी मैं डॉक्टर दहिया से डिस्कस कर रहा था, ये केस है जब मैंने उनको ट्रीट किया था 2011 में, और अभी 2025 में 3 महीने पहले शी वॉज डायग्नोज विद डक्ट सेल कार्सिनोमा एंड इट वॉज मेटास्टेटिक। और उसका असर ये हुआ कि उनको इतना फेथ था ये हॉलिस्टिक अप्रोच पे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड मैंने उनको केस बताया कि आज के दिन शायद उनका 50th डे है, 50वां दिन है, और उनका जो प्राइमरी साइड से ट्यूमर है वो 65% रिड्यूस हो गया है। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। ये क्यों हो गया है कि शी वॉज नॉट ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली, शी वॉज नॉट गिवन एनी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी और सर्जिकल इंटरवेंशन। शी वॉज ट्रीटेड होलिस्टिकली, metabolism was corrected, and her tumor cells were deprived of food, hyperventilated, hyperoxygenated, and given optimum nourishment. So this is one case study. So in coming future, probably thousands of such case studies I'd be able to tell from such stages. Right. Thank you. I'm so happy. मैं एक सवाल जो और मैंने आपसे पूछा था कि अगर आज सबसे बड़ा इश्यू या टॉप 3 इश्यूज आप आइडेंटिफाई करें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हमारे शरीर आज कह पाता, तो क्या कहता आपसे? सबसे पहले हमारी बात होती कि जो हमारे बॉडी है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात होती, क्योंकि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उस समय वो फाइटिंग मोड में होती है, इमरजेंसी मोड में होती है। उस समय जो न्यूट्रिशन है वो हमारे ऊपर काम नहीं करता, एक्सरसाइज काम नहीं करती, हम स्लीप से डिप्राइव होते हैं, और अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी में एसिमुलेट नहीं होता है। हमारा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबे समय से चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम अपना स्ट्रेस ठीक करते हैं, हम देखते हैं कि वही न्यूट्रिशन जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा था, वही न्यूट्रिशन हमारे लिए मेडिसिन हो जाता है। हमारा एक्सरसाइज करने में मन करता है, हमारी स्लीप बेटर हो जाती है। तो स्ट्रेस इज नंबर 1 किलर, बट ओनली स्ट्रेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। Stress is number 1, but still you cannot, there is a role of diet and physical movement, exercise and adequate sleep. And nowadays we are not exposed to the sun. Sun exposure is very, very, very important. So when we combine all these factors together और हमारी बॉडी स्ट्रेस फ्री होती है तो हमारा हीलिंग प्रोसेस जो है एक्सेलरेट हो जाता है।
जो चीजें हमारी जिंदगी भर में हील नहीं होनी चाहिए, वो विद इन अ फ्यू मंथ्स और विद इन अ ईयर वो हमारी हील होनी शुरू हो जाती है। सो होलिस्टिक मेडिसिन से हीलिंग प्रोसेस हमारी क्विकर हो सकती है, ऐसा आप डॉक्टर साहब का कहना है। ओके डॉक्टर साहब, अलका जी, आई कम टू यू नाउ। आपका रोबोटिक इज द मेन एरिया एंड आपको यूल बी हैप्पी टू नो कि अभी विजन इंडिया के प्रोग्राम में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स एंड स्टार्टअप्स का बात हैदराबाद और बैंगलोर में करके आए हैं। आई एम हैप्पी कि आज बाई चांस वो चीज आपके साथ दोबारा मुझे पूछने को मिल रही है। सो इट्स अ कंटिन्यूटी फॉर विजन इंडिया इन दैट पर्सपेक्टिव कि रोबोटिक सर्जरी स्पेशली गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी में क्यों महत्वपूर्ण है। और एक तरफ जब हम होलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो क्या होलिस्टिक के मॉडल में हम रोबोटिक सर्जरी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आज डायग्नोस्टिक्स आ गई हैं, बाकी चीजों फॉलोअप्स के मॉडल्स आ गए हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे आ गए हैं, उसमें क्या रोल हो सकता है और वो क्यों जरूरी है एंड व्हाई यू चोज, आपको क्यों लगता है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट वे अहेड फॉर ऑन्कोलॉजी? सो द फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी जो हम कहते हैं वो आज से 10 साल पहले इंडिया में हुई थी, मेदांता में। और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि रोबोटिक सर्जरी मतलब कोई रोबोट ऑपरेट करेगा, उसमें डॉक्टर का कंट्रोल नहीं होगा, तो वो फुल प्रूफ नहीं होगी, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। बट मैं आज एज अ गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट, विमेन कैंसर केयर एक्सपर्ट ये बोलना चाहूंगी दैट इट इज अ ब्यूटिफुल टेक्नोलॉजी। उसने कैंसर केयर के गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जहां पहले हम किसी कैंसर की बात करते थे, उसकी सर्जरी की बात करते थे, स्पेशली फीमेल्स में, अब जैसा कि मैंने बताया कि औरतें कई बार अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती, वो अपनी फैमिली को सबसे पहले रखती हैं। और जब तक उनको कोई हेल्थ कंसर्न होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और डॉक्टर मोस्टली ये समझाते हैं कि अभी तो बीमारी काफी बढ़ गई है, तो हम दूरबीन की सर्जरी नहीं कर सकते, हमें आपकी ओपन खुले हाथ की सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर महिला ये सोच के घबरा जाती है, ओहो इतनी बड़ी सर्जरी मतलब 10 दिन अस्पताल में, 3 महीना बिस्तर पे, 6 महीने तक मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी फैमिली सफर करेगी। तब भी वो अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो आज सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो चुका है जी। मैंने खुद ने लगभग 300 रोबोटिक सर्जरी करी है टिल डेट। पेशेंट आते हैं, सर्जरी कराते हैं और विद इन 2 डेज अपने घर चले जाते हैं। जो चीज हमें दूरबीन से या ओपन आईज से इतनी दिखती है, वो रोबोटिक सर्जरी से इतनी बड़ी दिखती है। तो गलती होने का, सर्जरी के खराब होने का, ब्लड लॉस होने का, सबका चांस ना के बराबर होता है। और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है सर्जिकल इंडस्ट्री में। मुझसे भी बहुत कई मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 1000-1500 सर्जरी कर ली हैं। और लेडीज खुद हमें आके बोलती हैं कि हमें इतनी घबराहट थी, आज से 10 साल पहले मेरी आंटी का इलाज हुआ था, वो तो आज तक भी ठीक नहीं हुई हैं, बट मैं 2 दिन में घर चली गई और मुझे लगा ही नहीं कि मेरी क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे कुछ भी असर पड़ा है। सो डेफिनेटली इट इज अ बिग चेंज। और मैं सबको ये एनकरेज करना चाहूंगी दैट अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। जितना जल्दी डिटेक्शन होगा उतना सिंपल इलाज होगा और उतना कम आपका रिकवरी पीरियड होगा। एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट 10-20 साल बहुत आराम से सरवाइव करता है अगर आप जल्दी से अपने शरीर के किसी भी बदलाव को अपने डॉक्टर के पास ले जाएं। तो ये भूल जाइए कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस। दिस थिंग हैज टू चेंज। बहुत अच्छी और बहुत नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और जैसा कि हम फाइनेंशियल बर्डन की बात करते हैं, मैं एज अ डॉक्टर जो कि कॉर्पोरेट सेटअप में बैठी हूं, बिल्कुल समझती हूं कि फाइनेंस से बड़ा कभी कुछ नहीं होता। तो अगर आप जल्दी आएंगे तो कम इलाज, कम खर्चा और अच्छी जिंदगी। तो ये सोचिए और अपनी बीमारी को डॉक्टर के पास लेके जाइए, बस वो ही इम्पोर्टेंट है। क्या कैंसर ट्रीटमेंट में होलिस्टिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमें कुछ चीजों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता हो? होलिस्टिक के साइंस में क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आप लोगों तक पहुंचते हो, जो आप प्रिस्क्राइब करती हैं किसी पेशेंट को या किसी को कि भाई ये भी साथ में करो, वो क्या चीजें हैं? सो होलिस्टिक केयर का अगर कहीं रोल है तो सबसे ज्यादा कैंसर केयर में ही है। मैं तो ये बोलना चाहूंगी, जैसे कि सर ने समझाया कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं। हम बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर और नॉट मॉडिफाइबल फैक्टर। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम कर सकते हैं और हमारे कैंसर होने के रिस्क को ही प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी के कंट्रोल में नहीं होती। तो कंट्रोल में क्या है? डाइट अच्छी करो, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रखो, वजन को कम रखो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे बढ़ती उम्र,
हमारी फैमिली हिस्ट्री, हमारा जेनेटिक मेकअप Genetics, right. या फिर क्रोनिक स्ट्रेस, तो इन चीजों को चेंज करना कई बार मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट जो हमारे कंट्रोल में है हम उसको चेंज करके अपना रिस्क कम तो कर सकते हैं, अगर कंप्लीटली खत्म भी नहीं कर सकते तो। True. Right. Thank you. Thank you. Dr. Sahab, Dr. Rajiv Rai, I'd like to come to you. हमने होलिस्टिक हेल्थ की बात की, केयर की बात की, बट केयर एक्चुअली जो देने की बात आती है तो नर्सिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इश्यू, क्योंकि डॉक्टर साहब लोग तो भाई आएंगे, उनके पास बहुत बड़ा पेशेंट का लोड है, देश में अभी भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, रेशियोज हम और आप सभी जानते हैं, तो उसमें जो नर्सेज का रोल है, जो सपोर्ट स्टाफ का रोल है, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम लोग बहुत बार ऐसे डिबेट्स में नहीं ध्यान देते। आपका उसमें एक बहुत जीवन भर का तजुर्बा रहा है, आपने उस पर काम किया है, आपने उसको बहुत नजदीक से देखा है, तो आपको क्या लगता है नर्सेज का क्या रोल है और उसमें नर्सिंग केयर में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आज देश में क्या है? अभिषेक, आपने सही कहा कि नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैं लगभग 30 सालों से नर्सिंग एजुकेशन में हूं और मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स हर साल पास होकर, और आई एम प्राउड दैट दुनिया में कहीं भी जाओ तो हमारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन मुझे कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि जिन नर्सेज से हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा रोल होता है, उनके साथ हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने सबसे ज्यादा इंजस्टिस किया है और इंजस्टिस जारी है। नर्सेज का एक्सपेक्टेशन क्या है? आपने सही कहा, डॉक्टर साहब लोगों के पास लोड रहता है स्पेशलाइज्ड में, उसमें जैसे आप गायनी में है, ऑन्कोलॉजी में है, तो लिमिटेड है, लिमिटेड स्पेशलाइजेशन है, पेशेंट्स ज्यादा है। आप दवा देंगे, साइन, सिम्टम, क्योर, प्रोग्रेस, डायग्नोसिस सब सही होगा। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फैमिली का कंडीशन, हाइजेनिक, हम तो समझते हैं नर्स का मतलब दवाई दे दिया, बीपी नाप लिया, पट्टी कर दिया, नर्स का मतलब हो, और हमारी रिस्पेक्ट भी उसी के प्रोपोर्शनेट होती है उसके लिए। सच्चाई है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे। नर्सेज का जो काम है, राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएशन, डॉक्टर को रिपोर्ट करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट करना, फैमिली मेंबर से बात करना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, डिस्चार्ज के बाद उनको क्या करना चाहिए, उनके न्यूट्रिशन का, इतनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन सबसे जो क्राइसिस जो मैं समझता हूं, अभी मैं जब यहाँ आया से एक हफ्ता पहले मुझे जापान से और जर्मनी से 1,000 नर्सेज के, ट्रेन नर्सेज के लिए रिक्वेस्ट आया, राइट, जीरियाट्रिक नर्सेज के लिए। अच्छा, ओल्ड एज। मैं गया था पहली बार 2008 में लंदन में गया, तो मुझे कोई बोला नर्सिंग होम दिखाने ले जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड ले गए। नर्सिंग होम जब हम गए, छोटी सी कहानी कर दूं, तो एक नर्स आया, मास्क बना था, आते ही पैर छुआ, पैर छूने से मैं समझ गया कि मेरा स्टूडेंट होगा, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज एवरीबॉडी। सर मैं 94 का हूं, तो वो ओल्ड एज होम, वहां ओल्ड एज होम होता है, हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। 60,000 हमारे नर्सेस बाहर जा रहे हैं हर साल, हर साल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जियो है कि एक नर्स की सैलरी मिनिमम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। जो बाहर जा रहे हैं उनकी? नहीं, अच्छा, हमारे देश में बाहर जा रहे हैं तो लाखों में कमा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा। मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मेरे दुबई में सेंटर थे, मैं वहां 6,000 दिरहम देता था, राइट। अब सोच लीजिए यहाँ क्या देता है। यहाँ नर्सेज का, आप नर्सिंग से होलिस्टिक हेल्थ में काम करने के लिए बात करते हैं, जो नर्स खुद ही माल न्यूट्रिशन के शिकार हो फाइनेंशियली, आई एम सॉरी टू मेक दिस स्टेटमेंट, ठीक कह रहे हैं, पेट खाली रहता है तो दिमाग भी 100% नहीं करता है। वेरी ट्रू। और आप रेशियो देखेंगे तो हमारे देश में 670 लोगों पर एक नर्स है। WHO का जो रिकमेंडेशन है 300 लोगों पर होना चाहिए। वो जो नर्सेज हैं, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देकर कैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं, जब मैंने बोला कि इंजस्टिस कर रहे हैं, कैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं। अभी पिछली बार मैं बहुत बचा के, पॉलिटिकल मैन हूं, फिर भी बहुत बचा के स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इसको कोई पॉलिटिकल कलर न दे। नहीं। एक साहब मंत्री बनते हैं, उनका मेडिकल कॉलेज खुलता है, उन्होंने 2-2, 3-3 डॉक्टर यहां बैठे हैं, एक ऑर्डर पास कर दिया कि हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की सीटें 300 बढ़ा दी जाएगी, 300 तक दिया जाएगा। 4 साल 1200 प्लस जीएनएम का लो 300, 900, 2100 नर्सेज को पढ़ाना। क्या खाली आप डिग्री बांटना चाहते हैं या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहते हैं? उन नर्सेज का आप मैन पावर की तरह यूज करना चाहते हैं। जब हम पर्सनल गेन के लिए किसी नोबल प्रोफेशन को डाइल्यूट करने लगते हैं तो सबसे बड़ा इंजस्टिस होता है। नर्सेज को, अगर मेरा मानना है कि अगर नर्सेज को वेल ट्रेंड, स्पेशलाइज्ड किया जाए, उनको उनका हक दिया जाए, तो एक तो जो ब्रेन ड्रेन होता है वो रुके। दूसरी बात, वो नर्सेज का काम इतना प्रिवेंशन, अब हमारे यहाँ कम्युनिटी हेल्थ अफसर्स होते हैं, वो नर्सिंग का होता है, CHS होते हैं। अब वहां आप जाओगे तो उनकी जो फैसिलिटी देखोगे, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हमारे साथ होते हुए भी हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं नर्सेज के, और हम सबसे बड़े
क्राइसिस में है। Crisis तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम नर्सिंग एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन देके उनके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, और हर सब्जेक्ट का, आप कैंसर की हैं तो दे शुड हैव एक्सपोजर इन कैंसर वार्ड, कैंसर ट्रीटमेंट, देन पेडियाट्रिक होना चाहिए, जीरियाट्रिक होना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ाकर वो भेज दिया जाता है। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस। नर्सिंग एजुकेशन इज नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर अटेंशन व्हाट इट डिजर्व्स। Right. और मुझे लगता है कि अगर नर्सिंग एजुकेशन को इम्प्रूव कर दे, क्वालिटी एजुकेशन दे, तो आप लोगों का भी वर्कलोड बनेगा, आपके अच्छे सही रिपोर्ट आएगी, तो आप ट्रीटमेंट भी सही ढंग से दे पाओगे। कर पाएंगे। जब वो रिपोर्टिंग ही सही नहीं होगी तो क्या करें। ठीक बात। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा सा एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। आपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की बात करी। कम्युनिटी हेल्थ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, स्पेशली प्रिवेंशन की, जहां हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा भी, आशुतोष जी ने जो बात कह रहे थे कि हम अगर बीमार ही ना पड़े, बहुत सारी चीजें, सैनिटेशन है, हेल्थ लिटरेसी की बात है, तो जो कम्युनिटी हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उसको होलिस्टिक मेडिसिन से जोड़ करके बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। अगर होलिस्टिक हेल्थ केयर के बारे में बोले, अगर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को अगर हम स्ट्रांग करें, राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग टू हेल्थ एजुकेशन, और बोलते हैं ना, देयर इज नो मीनिंग वेयर आर यू गोइंग इफ यू डू नॉट नो व्हिच रोड यू हैव टेकन। राइट। तो आपको जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ अफसर है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं रूरल एरियाज में, वेल ट्रेन एजुकेटेड हो, तो वहीं पर दो चीज करें। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। तो वो प्रोएक्टिविटी का एक प्रोएक्टिविटी, वहां प्रिवेंशन हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वहां स्क्रीनिंग हो जाएगी। वो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो डॉक्टर आशुतोष को भेजना है कि डॉक्टर अलका को भेजना है। हमारे तो मरीजों को जानकारी नहीं होती है। जब तक जानकारी होती है, फिल्टर होते होते जाते हैं। फिर जो हेल्थ स्कीम्स है, वैक्सीनेशन है, बच्चों को एजुकेट करना है, हाइजीनिक कंडीशन करना है, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। जो न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे तो उनका फिर प्रिवेंशन होगा। फिर रिपोर्टिंग सिस्टम होती है, जो रिपोर्टिंग हमारी सरकार थी, अब फिर वो आ जा रहा है घूम फिर के। तो मुख्यमंत्री जी ने एक आइडेंटिफाई किया था डेटा, मेडिसिन का डेटा का, तो पता चल जाता था कि किस इलाके में कौन सी मेडिसिन की ज्यादा खपत हो रही है, तो उसकी बीमारी वहां ज्यादा होती है। तो जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे, और फिर बात कर रहा हूं, सारा सिस्टम कर दीजिए, डेटा नहीं होगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो एक जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, एक गरीब को ये कम से कम इतना था कि अगर मुझे कैंसर की बीमारी हो गई है, किडनी या हार्ट की बीमारी हो गई, अगर 30 लाख का भी इलाज में खर्च होगा तो सरकार वहन करेगी। तो उस चीज को तो हम वो खाली पैसा नहीं दे रहे थे। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वाज हेल्पिंग एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन। और फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर होम, फॉर द फैमिली मेंबर्स। वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, स्ट्रेस का शिकार ना हो। डिप्रेशन, स्ट्रेस से फिर बीपी, डायबिटिक, पता नहीं कितनी ओबेसिटी, कितनी बीमारियां होती है। तो जब होलिस्टिक हेल्थ में पूरे सिस्टम को, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, एक्सपर्ट डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, होलिस्टिक हेल्थ की बात भी कंप्लीट नहीं होगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, थैंक यू। डॉक्टर आशुतोष जी, यहां अभी डिप्रेशन, स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, इमोशनल वेलबींग, इन सारी चीजों की बात हो रही थी। लेकिन आपकी फील्ड में जब हम बच्चों की बात करते हैं तो चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं, इश्यूज बिल्कुल अलग हैं। तो आपको क्या लगता है, वो कौन से 3 चीजें या 5 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो होलिस्टिक हेल्थ के हिसाब से हमें बच्चों के लिए ख्याल रखना चाहिए? अगर माँ बाप को सोचना है, फैमिली को सोचना है, कम्युनिटी को सोचना है, सरकारों को सोचना है, डॉक्टर्स को सोचना है, तो क्या 5 चीजें हैं? अभिषेक, आई थिंक अगर हम 5 कैटेगरीली बात करें तो फॉर द पीडियाट्रिक केयर इट्स फर्स्ट द फिजिकल हेल्थ, नो डाउट, यू कांट इग्नोर दैट फिजिकल हेल्थ. देन आई से द इमोशनल हेल्थ. Initially it was not, it was substituted category. Now it has been emotional health बहुत priority पे आ गई है. Then nutritional, हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं. इधर पिछले कई सालों से ये देखा गया अर्बनाइजेशन की वजह से India became the second largest capital of the obese children. Right. मतलब ये बड़ी आयरनी है कि फूड इंडस्ट्री ने पहले हमको पिज्जाज दिए, बर्गर्स दिए, डोनट्स दिए और फिर हमारे बच्चों को दिए, फिर बच्चों के साथ वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम दी और अब इंडिया में हाइपोथायराइडिज्म और डायबिटिक मींस प्री डायबिटिक चिल्ड्रंस की बाढ़ सी आई हुई है. एक देश
जो कुपोषण से लड़ता था, मालन्यूट्रिशन से लड़ता था, उसका एक दूसरा एंगल जो कभी हमने देखा नहीं था, वो ओबेसिटी पे आ गई. Right. So balanced nutrition is again a very important part. Nutrition. Okay. Then with comes the integration of families. I'm very sorry, हम लोग बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड हो गए हैं, टैक्स सेवी हो गए हैं, बट न्यूक्लियर फैमिलीज का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो मेरी क्लिनिक पे दिखता है, बच्चा जैसे आता है वो मेरी तरफ देखता नहीं है. देयर इज नो आई कांटेक्ट. वो कहता है डॉक्टर साहब वो बहुत नाक बहरी, सर्दी है, जुकाम है, ये है. मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो देख नहीं रहा मेरी तरफ. नहीं वो चंचल है डॉक्टर साहब, इट्स नॉट चंचल, क्योंकि उसका दिमाग आईपैड पे है, उसका दिमाग उस यूट्यूब पे है, उसका दिमाग उन चीजों पे है जिसके स्क्रीन की बात कर रहे हैं. स्क्रीन में बच गया है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोविड पैंडेमिक में इसको दुगना और 3 गुना बढ़ा दिया है. सो मदर को अपना ऑफिस से काम करना है, बच्चे को आईपैड पकड़ा दिया. फादर को कंपनी से बात करनी है, उसने आईपैड पकड़ा दिया. वो क्रैच में जा रहा है, वहां भी वो आईपैड और यूट्यूब पे है. सो देयर लॉट ऑफ गोइंग ऑन. ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म, बिहेवियर डिसऑर्डर, एडीएचडी, attention deficit hyperactivity disorder. Right. So integration of family is again important. Then social awareness and social involvement. एक समय हुआ करता था जब हम अपने दादा दादी से कहानियां सुनते थे. आज जरा पूछिए कौन सा बच्चा अपने दादा दादी से कहानी सुन रहा है? उसके पास समय नहीं है, उसके पास मेला जाने का समय नहीं है, उसके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, उसके पास समाज की बात करने का समय नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस ओनली, इट्स एडोलेसेंट. Right. आज जनजी बन गए हैं, लेकिन नेबर में कौन किसकी डेथ हो गई है या कौन बीमार है उसका नहीं पता. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो होलिस्टिक हेल्थ के लिए बेस बनी हुई है. सो इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ केओस सोसाइटी. और हमको लगता है कि इन सब बातों पे बात करना बहुत जरूरी है. ना केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स तो है ही, वी हैव अ गुड डाटा ऑफ इकोनॉमिक्स, बट दीज की फैक्टर्स डेफिनेटली चेंजेस द पीडियाट्रिक सिनेरियो. Right. Dr. Pankaj, you want to add something to that, please? डॉक्टर आशुतोष ने बहुत सही पॉइंट्स को इंडिकेट किया. ये हमारी बहुत शानदार गैदरिंग है, बहुत शानदार लोग बैठे हुए हैं, तो हम बहुत हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ यहां से जब तक टेक अवे ना हो तो मजा नहीं आएगा. तो जितना मैं पिछले 23 साल से प्रैक्टिस में हूं, न्यूट्रिशन की बात बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वास्तव में न्यूट्रिशन क्या है ये लोगों को नहीं पता है. कि अगर हम एक चीज देखें कि इंसान एक अकेला ऐसा जानवर है जिसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है. और किसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है? केवल उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है जो इंसान के साथ एज ए कमेंसल पेट्स हैं. पालतू कुत्ते हैं, पालतू बिल्लियां हैं, पालतू जानवर, अदरवाइज किसी को भी, तो किसी का ध्यान नहीं जाता होगा कि आखिर हमें ही हॉस्पिटल की जरूरत क्यों पड़ती है, या जो हमारे पेट्स हैं उनको हॉस्पिटल की क्यों जरूरत पड़ती है. एक नंबर 1. दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं, शायद उससे एग्री करेंगे लोग सभी पे. ह्यूमन रेस ही ऐसी है जहां पे चाहे एक बहुत गरीब आदमी हो या हमारे किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो या अमेरिका का राष्ट्रपति हो, एक चीज सभी में कॉमन है. चाहे कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है न्यूट्रिशनली डेप्राइव्ड है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसऑर्डर से 100% वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर कर रही है. कभी इसका ध्यान किसी का ध्यान इसकी ओर जाता है कि क्यों? मैं अग्रिम पंक्ति से बैठे हुए लोगों से बस सिर्फ हाथ उठाना चाहूंगा कि क्यों बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन के बाद भी हमारे जो 100% ग्लोबल पॉपुलेशन है दैट इज न्यूट्रिशनली डेप्राइव्ड. आपको क्या लगता है क्यों है उसका? वही मैं उसका जवाब शॉर्ट में देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो 100% फूड है वो कुक्ड फूड हम खा रहे हैं. कि जैसे ही हम अपने फूड को हीटअप करते हैं तो हमारे फूड से लाइव एंजाइम्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स सबसे पहले डेड हो जाते हैं, नंबर 1. सेकेंडली, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स, फैटी एसिड्स हैं, ये डीनेचर्ड हो जाते हैं. तो एक टेक अवे यहां से ये होना चाहिए कि अगर हम अपने फूड में, मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप 100% रॉ फूड खाना शुरू करिए, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने फूड में जितना ज्यादा रॉ कंपोनेंट्स होगा आपका हेल्थ उतना ही अच्छा होगा. तो एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम एक अपना मील, जैसे हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, उसको केवल हम रॉ कर दें, हम वेजिटेबल जूसेस लेना शुरू कर दें या स्प्राउट्स लेना. मैं भूखे रहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक
आपका जो मील है 3 मील्स में, 1 मील को हम रॉ लेने की सिफारिश कर रहे हैं और 1 मील में हाफ फूड, मतलब आधा हम सैलेड या स्प्राउट्स के रूप में लेना शुरू करें। साथ में अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, तो हमारी आधे चैलेंजेस हेल्थ के यहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स को साथ में रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपके मन में शायद कुछ सवाल आ रहा था, आप पूछना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लगा। Abhishek, I will come to you because you have been the part of management and Rajiv sir is the policy makers. मेडिकल इन्फ्लेशन पिछले कई दशकों से देख रहे हैं कि बहुत तेजी से बूम हो रहा है और ये मांग 15% के ऊपर है। इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी, एक इंडेक्स में है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट 9 ट्रिलियन डॉलर। तो हम जब होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट है वो पिछले 10 सालों में दुगने से ज्यादा हो गया है, 12 मिलियन। तो हम बातें तो कर सकते हैं कि हम अच्छे से होलिस्टिक अप्रोच करेंगे, लेकिन ये जो देश की 60% या जैसे राजीव ने बताया कि जिसको हम 5 किलो राशन पे पाल रहे हैं, डॉक्टर्स कितने भी अच्छे हो जाएं, वी नीड अ मोर मैनेजमेंट एंड मोर पॉलिसी मेकर्स टू कम इन दिस फील्ड। और मुझे लगता है कि आप दोनों से बेहतर इस पे कोई अच्छा कमेंट नहीं कर सकता। योर टेक ऑन दिस होलिस्टिक मेडिसिन फॉर एज अ डॉक्टर, हमें एक सीखने को मिलेगा आपसे। डॉक्टर साहब, आप पहले इफ यू वांट टू से देन एंड आई क्लोज मैं विद उसके पहले डॉक्टर साहब वाली में एक लाइन जोड़ दूं जी कि खाली इंसान ही एक ऐसा जानवर है कि जो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर साहब, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। कोई और जानवर पैदा होते नहीं रोता है, जिंदगी भर शिकायतें करते रहते हैं और निराश चले जाते हैं। अगर इफ यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अवर सेल्फ इन प्रॉपर मैनर, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। ये आपने सही कहा, जो हमारा बजट का हेल्थ सेक्टर पर अलॉटमेंट है वो भी इतना इनसफिशिएंट है हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कि हम बातें जितनी भी कर लें और जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसीज है, हम बीइंग लिटिल मोर क्रिटिकल, हम बातें कितना भी कर लें, जब तक आप लोगों से फीडबैक मिलकर लेकर और पॉलिसी जब तक वो दिल्ली के एसी वाले कमरे में बैठकर ब्यूरोक्रेट पॉलिसी बनाएंगे, मेरा मानना है कि देश के हेल्थ सेक्टर के प्रॉब्लम को सही ढंग से एड्रेस नहीं किया जा सकता जब तक कि हेल्थ सेक्टर से लेके डॉक्टरों से फीडबैक लो। नीचे से ऊपर जाना चाहिए फीडबैक, तब पॉलिसी आनी चाहिए। 10 years बैक हम 1.5% ऑफ द जीडीपी एक्सपेंड करते थे अपने हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर आज 2%। आईएमए कह रही है 3.5% से नीचे हम बेसिक हेल्थ केयर नहीं दे सकते। मिनिमम 2.6%, 2.6 मिनिमम 2%, और हमको नहीं मिल रहा recommend है। हमें ये पॉलिसी मैटर फंसता है, चाहे गवर्नमेंट कितनी भी आए, बट वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज प्रोएक्टिव अप्रोचेस रेदर देन ऑल दिस। जानते हो गेम कैसे होता है? दिखा दिया जाएगा कि 2014 में इतना खर्चा हो रहा था, 2024 में इतना खर्चा। 2014 में जो ट्रीटमेंट हो जाते थे, महंगाई का जो रेट था और आज तक जो पैसे की वैल्यू थे, जोड़ ले तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ है, बातें बहुत हो गई। लेट अस बी ऑनेस्ट। अगर देश का स्वास्थ्य, मैं पार्लियामेंट में लाइन बोला था कि अगर देश के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो तो देश का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता। देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक करिए। आपने जो कहा, आई जस्ट गिव अ क्लोजिंग कमेंट ऑन दैट कि आज जो एडवांस कंट्रीज है जिनको हम एडवांस कहते हैं हेल्थ के बारे में, तो अगर आप देखें तो जीडीपी का 6 से 7% तक का आउटले खर्च करता है। अमेरिका कई सालों में जो बजट का है 10, 12, 13% तक के आउटले खर्च होते हैं। हम अभी भी 1.5 से 2% के बीच में स्ट्रगल करते रहते हैं जीडीपी का आउटले। एक तो वो बात, दूसरी अभी जो डॉक्टर राजीव राय ने कही, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज अगर आप जोड़ लेंगे तो 2014 और 24 में जो बजट का इंक्रीज है, जंप है, वो एक्चुअली उसका जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो दैट is something because inflationary tendencies have actually reduced the buying power जो उस पैसे से हम खरीद सकते हैं ट्रीटमेंट। तीसरा एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं कि इस देश में जो ट्रेंड शुरू हुआ है, एंड दिस इज अगेंस्ट नोबडी, हमारे मंच पे सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, एंड कॉर्पोरेटाइजेशन इन द सेंस जो स्पेशली भारत सरकार की पॉलिसीज के तहत हुआ है। फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में जितने हमारे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स थे जो होम ग्रोन थे, जो जिन पे ये सेंसिटिविटीज थी कि आप सस्ते दाम पे भी ट्रीटमेंट करेंगे, सरकारें उनको सब्सिडाइज जमीनें देती थी, सब्सिडाइज बाकी चीज इंसेंटिव्स दिए जाते थे, वो भी सब कॉर्पोरेट्स को सेल आउट हो गए।
आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखिए 50%, 49, आज 50% ऊपर 75, अब 100% अलाउ कर दिया गया है। सिमिलर ट्रेंड है हमारे यहां ओनरशिप ऑफ डायग्नोस्टिक चेन्स, और सिमिलर ट्रेंड है टुवर्ड्स ग्लोबल मनी, टुवर्ड्स कॉर्पोरेट ग्लोबल मनी इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड दवाओं की कंपनियों में। हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको भी बाहर की बड़ी कंपनियां आकर के खरीद रही हैं, और बड़े आप देखिए इस समय ओलंपिक के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इली लिली वाला आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल्स पता है। तो उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, सरकार को अपना आउटले बढ़ाना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद हम इस देश को एक हेल्दी नेशन की तरह बना सकें। अदरवाइज आज की तारीख में जो रिसोर्सेज हैं उनसे ये सच पूछिए तो संभव नहीं है। But Abhishek, contrary to this, we can say that we have also, Alok Ranjan sir, he can explain. हम जब होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो इंडियन जो मार्केट है वो 2018 से इट वाज अबाउट $100 million US. In 2024, it's become $156 million US, and is projected to be $256 million. अब इशू क्या है कि सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन, तो बड़े बड़े प्रोटीन पाउडर्स आ गए हैं दैट कॉस्टिंग अबाउट ₹1,000 a box of 500 grams. True. So how can you expect a child या एक मध्यम वर्गीय परिवार वो 2 डिब्बे भी नहीं खरीद पा रहा है, और हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो पॉलिसी क्या ऐसा तो नहीं है कि इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ अ एलीट क्लास ओनली रेदर देन, और जो लास्ट पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए कुछ तो हमें हेल्थ को एलीट क्लब नहीं बनाना है, दैट इज हमें नहीं बनाना है, और हमको होलिस्टिक हेल्थ पे वहां बात करनी है। सॉरी, विद दैट वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, वी विल क्लोज दिस सेशन। हम 2-4 सवाल अगर कोई हो तो 2-3 सवाल हम ले सकते हैं, हमारे पास उतना वक्त है। जी प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड एक माइक दे दीजिए। आई एम जॉर्जिन सत्यम सिकरवर। मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, सो इसका जो प्लीज आइडेंटिफाई, आप किससे जवाब चाहते हैं? किसी एक पर्सन का ही नाम लें, नहीं ना ना ना, ना। एक आदमी का ही आप नाम लें, आपकी उससे आप जवाब चाहते हैं। मेरा जो क्वेश्चन सर बहुत कॉमन है। मेरा क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर जो मूवमेंट जो अभी हम बात कर रहे हैं उसको अगर हमें इंडिया में रिवोल्यूशनलाइज करना है तो उसका 2 रीजन है और 2 ही सपोर्ट सिस्टम है। एक, हमें एज ए ह्यूमन और एज ए फैमिली हमें उसको एक अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा, और एक गवर्नमेंट एज ए गाइडलाइन हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक बात। तो वो क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो एज ए फैमिली हेड वन शुड टेक एट एज इंडिविजुअल और एज ए गवर्नमेंट के कई सारे स्टेप्स होते हैं, मे बी एट दी ब्लॉक लेवल, मे बी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मे बी एट स्टेट लेवल, और तो मे बी नेशनल लेवल। तो ऐसे छोटे छोटे क्या क्या स्टेप्स हैं विच शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड स्टार्ट एज एन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम एज ए फैमिली ले सकते हैं और एज ए गवर्नमेंट भी ले सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। थैंक यू। अभी आपके इस क्वेश्चन का जवाब बहुत डिटेल में डॉक्टर राजीव राय ने दिया है। आप डॉक्टर साहब अगर आप कुछ 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है आप जवाब दे चुके हैं। मैं इसको दे चुका हूं, शायद पता नहीं आप देर से आए। आप अभी थोड़ी देर पहले बोला था, गवर्नमेंट की बातें बोल दिए थे, हम यहाँ चूंकि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बट हमने फैक्ट्स बता दिया कि हमारे जीडीपी का कितना खर्च होता है और क्या हमारा हेल्थ सिस्टम है और कैसे स्ट्रक्चर है, हेल्थ एजुकेशन हाइजेनिक। देन एक होता है ना, हम अभी इसमें एक सब्जेक्ट छूट गया है, फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज अगर हम करते रहें, प्रॉपर डाइट लेते रहें, हाइजीनिक मेंटेन रखें, तो शायद बहुत सारे सवालों का जवाब हम खुद ही ढूंढ लेंगे। और बाकी जो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो हम तो कहे हैं कि हिंदुस्तान मतलब इंसानी एक ऐसा जानवर है जो पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है, रोते रहें। थैंक यू। सेकंड गेस्ट प्लीज हियर। सवाल पूछें और किससे पूछना है वो बताएं। ये मुश्किल है किसको पूछना, क्योंकि ये मेरा सवाल वेरी कॉमन है सबके लिए, ज्यादातर मिनिस्टर सब बता सकते हैं, तो ठीक है। जितने भी आप पेनालिस्ट यहाँ बात किए सब वही 5D के अंदर जो हेल्थ का 5% है, डिजीज डायग्नोसिस डॉक्टर, इसी के ऊपर ही है। ये होलिस्टिक का लास्ट पार्ट है, 5% है। लेकिन नीचे वाला जो है आपको पीने का पानी नहीं मिलता है, सेफ वाटर नहीं मिलता, जो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। न्यूट्रिशन को जो एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन हमको माइक्रो न्यूट्रन नहीं मिल रहा है, ये गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको एक मकान नहीं मिल रहा है, ये गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको सेफ एनवायरमेंट नहीं मिलता है, स्ट्रेस होता है वो, इसमें ये गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको ज्यादातर जितने भी हेल्थ एंटाइटलमेंट है
जो ये सब गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है और नहीं मिल रहा है, उसके कारण मुझे बीमार होता है। और वही हम बात करते हैं 5D को, वो मांगते भी वही 5D है। मुझे डॉक्टर चाहिए, फ्री डायग्नोसिस चाहिए, फ्री मेडिसिन दवाई चाहिए। ये लास्ट 5% है। जो 90%, 95% उसमें गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, वो नहीं करते ज्यादातर देश में। वो स्ट्रेस बढ़ता है, गवर्नमेंट के कारण बढ़ता है। ये सब हम बात नहीं करते हैं। होलिस्टिक जो बात होता है, ये जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है वो नहीं बात करते, दोष देते हैं मरीज को। ये हमको होलिस्टिक जो बात करेंगे तो ये बात जरूर आना चाहिए, क्या गवर्नमेंट का करना चाहिए, करेगा तो ये सब नहीं होगा। ये मेरा सवाल था। तो विजन इंडिया समिट का मकसद यही था कि हम लोग समझ सकें कि क्या लोगों के मन में चल रहा है और क्या आपको लगता है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिससे उसको मौके पर ठीक से पूरा कर सके। ठीक है, खत्म करें। नहीं ठीक है, जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। बिल्कुल पूरे अभी तो जो गवर्नमेंट है, अभी तो जो गवर्नमेंट में है, वो इंदौर में लोग पानी से मर जाते हैं तो कहते हैं कि घंटा। तो गवर्नमेंट हम ही चुनते हैं, आप लोग सही गवर्नमेंट चुनिए, सही सवालों का सही जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच। हमारे पास वक्त की कमी है, सो हम ये सेशन खत्म कर रहे हैं इसी के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद हमारे डिग्निटरीज के लिए मंच पे 2 मिनट आप और ज्वाइन करेंगे। हम एक मोमेंटो देना चाहेंगे आपको, जिससे कि एक टोकन हम दे सकें उनको। एंड इसके बाद हमारा सुपर सेशन होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विद दिस वी क्लोज द सेशन एंड मोमेंटोस के डिस्ट्रीब्यूशन करा दें। Thank you so much, sir. And now I would like to invite here Mr. Abhishek Mishra to felicitate Mr. Rajiv Rai. Let's put your hands together for the moment, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and honor to welcome the National President of Samajwadi Party, 5 times Member of Parliament, former Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Shri Akhilesh Yadav ji. Most welcome, sir. It's an honor to have you here. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे राष्ट्रपति जी आगे हैं कि प्लीज अपने हाथों से हमारे गेस्ट्स को सम्मानित करेंगे। Sir, please, maybe you could start with Dr. Alka ji. Dr. Pankaj Bharti ji. एक जोरदार तालियों की please निवेदन give a करेंगे। warm round of applause. Honorable Shri Akhilesh Yadav ji, giving a memento for memories to Dr. Pankaj Bharti, please. Next, to Shri Rajiv Rai ji, it's a great honor, sir. Sir. And lastly, I would request a memento for Dr. Ashutosh Verma ji, please, in the hands of Honorable Shri Akhilesh Yadav ji. It's a great moment of pleasure and privilege, sir. Thank you so much. Thank you so much. And with that, we close this session. Thank you, sir. And thank you so much, sir, and we'll request you again, please. Thank you to the panelists.